Bilal Khan. Yes, sir. आप भी last time आए थे? Yes, sir. Architecture. Sir, but I came the first time. You were not there in the I board at don't that know. time. That's why I don't remember. You've done B architecture. Yes, From sir. where? Sir, from Jamia Millia Islam. They have architecture also there. Yes, sir. Okay. बिलाल जी आप भी पहले बता दीजिए आप सेकंड टाइम इंटरव्यू किया है तो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन व्हेन यू टेक इंटरव्यू फॉर Sir, like he said yes, sir. you want to be grilled into certain these questions. If there is any such Sir, I want to be grilled in every aspect. Wherever my mistakes will be, that will come out. Where are you from? Sir, I am from Rishikesh. You are from Uttarakhand. Rishikesh. Yes, sir. And architecture. That is what I wanted to do. Have you heard of Frank Lloyd Wright? Yes, sir. FLW. What is his favorite, the most important structure? Sir, the waterfall building. Waterfall. Yes, sir. And in India, Yes, sir. Le Corbusier made Right, sir. Chandigarh. Right? Yes, sir. Yes, sir. Any other city he was involved in? Sir, sorry, sir. I can't remember right now. Bhubaneswar. Bhubaneswar. Yes, sir. He's done that. Yes, sir. And name a few Indian architects. Sir, architect Raj Rewal. Okay. And sir, B.B. Doshi, sir. He has received the Pritzker Prize also. Yes, sir. Charles And Correa. Charles Correa, sir. Raj Rewal's beautiful structure was demolished recently. Yes, sir. To make a building which one Prime Minister likes very much. Right, sir. What was the structure that was demolished? Sir, it was the Pragati Maidan Exhibition Hall. What was it called? Sorry, sir, I don't remember the name. Hall of Nations. Hall of Nations, yes, sir. It was like a geodesic dome ka thoda. Yes, sir, yes, sir. Great. Pyramidal structure, sir. So, why are you interested to stay? Because you belong to Rishikesh, that's why you would like to come here. Sir, there are other reasons also. For example, I worked in CBRI, then I worked in the government area, say Central Building Research Institute. That's the Mathura Road. No, sir, it is in Roorkee. Roorkee. Okay. Yes, sir. So there I experienced how the government works, how the government sector works. So I met there some officers also. So I got my interest in civil services, and then the civil service is such a platform that gives you not only for your not only for yourself, but also it gives a bigger platform where you can serve the people and you can change the life of the others also. So I felt that my experiences and whatever I have learned in my life in private sector, in public sector, I can better contribute in this administration side. When did you complete your architecture? So I completed in 2016. 16. So did you work with some company? Yes, sir. I worked 1 year in a private firm called V Resorts. Then in the second year, I worked for Central Building Research Institute as a project architect. Where all have you been in the hilly areas? So for staying or no, just like that for visits. So I have been in Mussoorie, yes sir, and Dhanolti. That's what. Yes sir. So I have not been to Kumaon. It doesn't matter. Yes sir. Now in Narendra Nagar district. Yes sir. I went recently. Yes sir. And a lot of big hotels are coming up. Right sir. I saw Westin also. Yes sir. They are they not blot on the ecology of the region? Sir, I would say that it is obviously development is important, but yes, that whatever buildings has to be come up in a hilly area, they should be sustainable and they should be built after the proper environmental impact assessment only. By whom? So by the state authorities, because which authority? Now you are going to join government. Yes, sir. So it depends on the project also, because in environmental impact assessment, projects have been divided into two categories: Group A and Group B projects. So it depends on the scale of the project. So if Group B projects are coming, then state authority will come up, the State Environmental Impact Assessment Authority. If a major project is coming up where a heavy industry or something like that is concerned, then central government, the Central Environment Impact Authority will come up. So that will be the case, sir. And suppose you are the SDM or local functionary, would you be involved in approval or anything to do with the plants? Let's say you are in MDDA. Yes, sir. We are posted in MDDA, right. And all kind of buildings are being made in yes, sir. this area. I don't have yes, to sir. elaborate. Yes, sir. Can you actually check that? Sir, I think first of all we will have to check the major master plan. That is important, that whatever buildings are coming up, they are coming up according to the master plan that has been prepared. Then at the local level, the local employees are there. They have to be very strict in that. And since I will be the SDM, then I have to keep a check on the local employees. That is a very important. For example, the patwaris and all the surveyors who are doing the survey of buildings, that whether the proper bylaws have been followed or not, and whether the construction is taking place. But the kind of stakes, the kind of money that is involved in yes, this, sir. And the kind of blatantly the flouting of rules that is going on. Yes, sir. Will you be able to actually exert yourself?
So I will try my best because that will be my job. That whatever rules have been made, the buildings they should come according to those rules. So Will definitely, you hesitate to use a bulldozer on an illegally constructed building? sir, that will depend on the case. I think that because it is important that we study the further case and then we decide whatever action is taken, because whatever action has to be taken, if it is a bulldozer or not, it has to be according to the rule of the book. So then I will take that action accordingly. Just last question. Yes, sir. What is the state bird? Sir, Monan. What is it? Uh, Have you sir, seen the photograph? sir, I have No, not seen the you have photograph, not. but That's I why know, I sir. So I have seen, but I know that it's green and blue color. Green is the tail of that color. Yes, sir. Bilal, we Yes, are sir. from Rishikesh. Right, sir. We have experienced that Rishikesh administration goes out of hand on weekends. Yes, sir. So, what are the reasons why the traffic congestion in Yes, sir. Rishikesh is so much in weekends? Yes, sir. And what Sir, suggestion do you have? yes, sir. Sir, since Rishikesh is a very spiritual place and it is a major entry mark of the Char Dham Yatra, so the carrying capacity of Rishikesh has been exposed because large number of tourists are coming there. Around last year, 50 lakh visitors have come up. So major issue is one of the traffic, and a second will be the major urbanization that is coming up. So the lots of spaces have been now not utilized properly. And so third will be the problems of solid waste management also, because sanitation problems have been built up because so much tourist capacity and even the local people are growing up population. So these three problems are there. So if I talk about the solutions, then I think first of all, it is very important that we see the traffic aspects. So for that, if we talk about the traffic aspects, then it is important that we brought the tourists in a certain way that the carrying capacity is not exhausted. We can build up sections properly for parking. We can build the proper signages, because sometimes what happen, the tourists they come up and they take up the main road of market, but they are not taking the highway road which is besides a main road. So it is important that proper signages are taken up, proper traffic routes and nodes are identified, proper data is taken up on the place, which nodes are there, which are having the proper penalties should be given up, sir, because sometimes we see that parking has been given on a very rough patch. So penalties should be on a higher So note. why don't we see any flyovers in Rishikesh? Sir, that is a major problem, I would say, in Rishikesh. What are the reasons why don't we see? Sir, major reason is the encroachment that has taken place, because large number of urban sprawls has come up in Rishikesh, and for the authorities to dismantle it has become a problem because of the political issues. Also, they are the voters also now. But Okay. yes, sir. You have seen this enlargement of road from Delhi to Dehradun. Right, sir. So there is a debate of ecology versus development. Yes, sir. Which side of that debate you are on? Sir, I would say that the debate should end on a balanced note, because without development also there's a definite loss, and without ecology also there is a definite loss. So a balanced perspective has to be taken, that we do development in such a way that is sustainable, that it doesn't affect our economy and Do ecology you both. think there is a requirement of a road which can take us from Delhi to Dehradun in 2.5 hours? Then there are alternative like uh, airlines are there, airport is there, flights are there. So do you think we need road also for shortening our journey? Sir, I would say that yes, the requirement is there, because now this route is also very congested, and now the roads are being developed in such a way. Then it has to go through forest. Yes, sir. The But forest must be cut. yes, sir. But if you will say, for example, corridors have been made up, wildlife corridors have been made up, that has been taken care of, that it don't disturb the ecology, and proper the elephants and all the animals they can pass through the roads. So yes, the roads will be developed, but they should certainly be What about developed. felling of trees? Sir, felling of trees has to be compensated in those areas which are deserted. So Campa authority will definitely Can be you a, suggest one such area in Uttarakhand where you can compensate by going for reforesting or something? uh, sir, I'm not very sure, but I think Rudraprayag is some area, because landslides are very much there. So the area has been deserted. So it is important that we do afforestation in Rudraprayag, and so that we can prevent landslides also. Have you read Swami Vivekananda? Sir, I know, I have not read in detail, sir, but yes, I know about So him. what are the teachings of Swami Vivekananda that will help you in administration? Sir, he has been a very secular people. He has been a very secular person, and he has been such a person who is taking all of us all together. Three teachings. So I'm not able to recall, sir. Sorry.
this famous quote that we say. Yes, sir. Arise, awake, and do not stop till your goal is achieved. That is the motto of civil servant. Yes, sir. If you have a goal, Yes, sir. then that is the motto, right? Right, sir. Right, sir. Do you know Mr. Indramani Gautam? Yes, sir. What is his contribution? Sir, he fought for the Uttarakhand movement, and he also was involved in a fasting movement for the Uttarakhand state. Thank you. Bilal, Yes, sir. my question is, Yes, sir. firstly, what is reverse migration? Yes, sir. और उत्तराखंड गवर्नमेंट रिवर्स माइग्रेशन को इंश्योर करने के लिए एंड टू प्रमोट द रिवर्स माइग्रेशन, Yes, sir. व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट? सर, रिवर्स माइग्रेशन. yes sir. Yes sir, yes sir. सर, रिवर्स माइग्रेशन उसे कहते हैं कि जब जो पलायन जो ऑलरेडी हो चुका है, फॉर एग्जांपल हिली एरिया से प्लेन्स में जा रहे हैं या इवन आउटर स्टेट्स में जा रहे हैं, तो उनको वापस बुला के अपने जो उनके होम्स हैं उसमें लाया जाए, तो वो रिवर्स माइग्रेशन कहलाता है. और सर, उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में पलायन एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत ट्रिवियल इशू है, जो इसका हमने असर भी देखा. इवन वोटर्स लेआउट भी काफ़ी कम हो गया उस वजह से. तो उत्तराखंड में पलायन आयोग इस्टेब्लिश हुआ था 2017 में, और सीएम पलायन रोकथाम योजना इस्टेब्लिश हुई है ताकि लोगों को उनके घर पे दोबारा एम्प्लॉयमेंट मिले, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है पलायन का. तो हिल्स में प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, सर हेल्थ में, एजुकेशन में, ये 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस स्कीम के थ्रू यही इंश्योर किया जा रहा है कि जो लोग छोड़ के जा चुके हैं वो वापस आए. तो जो आयोग 2017 में एस्टेब्लिश किया गया, जी सर. वो अभी फंक्शनिंग है या फिर क्या स्टेटस है? सर, उन्होंने 2018 में अपनी रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है. ओके, यस सर. क्या कुछ रिपोर्ट्स के हाइलाइट्स आप दे सकते हैं? यस सर. सर, उस रिपोर्ट में एक तो उन्होंने मेजर रीजंस को आइडेंटिफाई किया कि क्या मेजर रीजंस है जिसमें कि सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का फैक्टर आया. 50% ऑफ द पीपल जो है वो एम्प्लॉयमेंट की वजह से जा रहे हैं. सेकेंड फैक्टर हेल्थ का था. थर्ड फैक्टर एजुकेशन का था. फिर उसमें सर जो इंटरवेंशंस लिए हैं उसको को रोकने के लिए उसमें ये बताया गया कि लोकल एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल एरोमा फार्मिंग को हम हिल्स में प्रमोट कर सकते हैं ताकि हिली एरियाज में जो पॉपुलेशन है वो उसको प्रमोट करे. टेरेस फार्मिंग को प्रमोट करे क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो रही है. तो इस तरह के सर इंटरवेंशन उन्होंने दिए हैं. एक चीज मैंने कहीं पढ़ी थी कि यहाँ जो खेती बाड़ी है उसमें Yes, एक sir. बहुत बड़ी समस्या है, जंगली जानवर और सुअर आके उसको बर्बाद कर Correct, देते हैं, correct. जानवर और सुअर. यस सर. उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, ये एक डेफिनेटली बहुत बड़ा इशू है उत्तराखंड में, जिसे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, और फिर वो इवन हमारे खेतों को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है सर कि हम अपनी इकोलॉजी को प्रिजर्व करें, क्योंकि उनका खेतों में इंटरवेंशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनकी जो बायो हैबिटेट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. तो उसको प्रिजर्व किया जाए. और कई बार ये भी देखा गया है कि उनके पास फूड नहीं है फॉरेस्ट में, तो कुछ हम उस तरह की सीडलिंग्स हम फॉरेस्ट में प्लांट करें ताकि उनको वो प्रॉपर फूड मिल पाए. सर, देन एक प्रॉपर डिमार्केशन होना चाहिए कि किस तरह से हम फॉरेस्ट और जो हैबिटेट है. खेत लोग ही नहीं है, यस सर. बचे हुए खेत उसमें कुछ लगाते हैं तो सारा बंदर और वो खा जाते हैं. यस सर. सर, एक इसका इम्पोर्टेंट अगर हम इंटरवेंशन देखें तो ये भी रहेगा कि हम रिवर्स माइग्रेशन करके लोगों की पॉपुलेशन बढ़ाएं ताकि वो कम हो पाए जानवरों का खतरा. क्यों बंदर को तो और मजे आएंगे, सड़क में घूम रहे हैं बंदर. सर, बट जैसे और जो एनिमल्स हैं, डेंजरस एनिमल्स, चीता है या एलिफेंट है, इस तरह के इवन सर बंदरों का सर जैसे इस तरह उनका डोमेस्टिकेशन की तरफ हम देख सकते हैं. तो ये सर रहेगा. बहुत बड़ी समस्या है. यस सर. ब्रीडिंग को रोकने के लिए भी आजकल कर रहा है बच्चे तो पर एक्चुअली इसके बारे में कोई बात नहीं है. सबसे आप गांव में जाके पूछो तो यही सबसे बड़ा. हाँ, लोग खेती नहीं कर रहे, खेती नहीं कर रहे, पानी भी है, Yes, सब है. कंसीक्वेंस क्योंकि कोई रह नहीं रहा, जैसे राइट भी हो क्योंकि कोई रह नहीं रहा तो इसलिए जंगली जानवर ज्यादा रहते हैं. ज्यादा रहते तो थोड़ा डरते हैं, बिल्कुल. क्योंकि हर घर में आग लगती है, चूल्हा जलता है, आग लगती है तो उससे डरता है जानवर. Right, sir. बाहर से थोड़ा डरता है. ठीक है, फिलहाल आप पुराने कैंडिडेट स्टार्ट कर दीजिए. यस सर. सर, कैन आई ब्रिंग माय नोटबुक? प्लीज. May I come in, sir? मैनेजर इंटरव्यू सर, 28 ऑफ मे. बहुत टाइम है. यस सर. बार बार प्रैक्टिस करा रहे हैं. तुमने स्कूल कहाँ से करी है? सर, ऋषिकेश से. सर, 1-2 मेरे डाउट भी मुझे वही पूछने हैं आप लोगों पहले से. आप वो कर लीजिए, फिर हम आपको मौका यस सर. गुड एंड
थैंक यू सर। सर एक मेरा डाउट ड्रेस के ऊपर है कि मुझे जैसे एक मॉक में कहा गया कि दिस टाइप ऑफ कोट इज नॉट एक्सेप्टेबल ये दिस इज सर, अवॉइडेबल। अवॉइडेबल, सो आई शुड चेंज। यस दिस सर, इज पार्टी शूट। यस सर, आपसे पहले जो आया था, यस he was सर, wearing a white shirt and Yes, a sir. decent tie. Pretty good. थैंक सर, I think so. Unless you have a ये problem. स्टेप ये दिस इज नॉट This is एक्सेप्टेबल। not. यस आप सर, अगले दिन कभी ऑफिस में भी एटीएम या वीडियो में जा रहे राइट हैं सर, या सचिवालय में जा रहे हैं, यू विल नॉट टेक दिस सूट वंस यू आर इनटू सिस्टम। यस सर, थैंक सर। सर एक बेसिक सा क्वेश्चन है, जैसे मेरा इंटरव्यू हो सकता है 3:30 या 4 PM तक आए, तो उस टाइम गुड आफ्टरनून करना है या गुड इवनिंग करना है? आफ्टरनून सर, थैंक सर। अरे आप जितने चेयर को मेरे को बोलेंगे तो इट हार्डली मेक्स कि आप क्या बोल रहे हैं। यस सर, Good night तो कभी बोला ही नहीं जाता. यस सर, Just for never. यस सर, Unless it is for bye bye. यस सर, अगर आपको 9 बजे भी आप किसी को मिलोगे तो गुड इवनिंग ही बोलो. यस सर, नाइट तो डिपार्टिंग यस डेट है सर, ना, यस सर। जो आप डिपार्ट मिलते हो तो नाइट बोलोगे ना डिपार्टिंग डेट है। सर जैसे 4 PM का करें तो गुड आफ्टरनून Good ठीक है। afternoon बोलते हैं. हाँ Good यस evening तो बोलना ही गुड नहीं. इवनिंग, तो बोलना ही नहीं. यस सर, Good evening is for party. यस सर। Not for never. और कुछ नहीं. सर आपका नॉलेज अभी भी अच्छा है, मेरे भी मुझे डाउट है। बिना आपका नॉलेज भी अच्छा है, कॉन्टेक्ट सारा अच्छा है। ऋषिकेश में पढ़ने में हाँ, क्योंकि yes, ऋषिकेश में कोई भी जाता है ना, राइट किसी सर, समस्या को पूछता है, राइट सर, उस तरीके का सॉल्यूशन देख लेना यस सर, कि ट्रैफिक पुलिस सही जगह पे नहीं, Yes, sir. ट्रैफिक डाइवर्ट होना है। यस सर, जहाँ पे इंटरव्यू जहाँ में समस्या बताई, Yes, वही sir. सॉल्यूशन दिया ना, राइट सर, तो जहाँ से उनको डाइवर्ट करना आपको यस सर, बताइए कि यस सर, यस सर, वो Signages वो की problem रोके है और सर, डायरेक्ट को yes, sir. बोले कि आपको ऋषिकेश सिटी में जाना है यस सर, या आपको देवप्रयाग की तरफ जाना है। राइट सर, यस सर, तो दूसरा कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड है तो उसमें तो गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ेंगे, राइट सर, चाहे रेवेन्यू लॉस हो जाए। यस सर, क्योंकि अगर आप राफ्टिंग भी और 4 दिन आप मेरे साथ में यस सर, चला रहे हैं यस सर, तो वो ऋषिकेश की कैरिंग कैपेसिटी जो होती है सिटी यस की, सर, यस सर, इकोलॉजिकल उसके बाहर चले जाएगा तो शहरी बर्बाद हो जाएगी। राइट सर। सर जैसे एक मतलब ये था मेरा पर्सनल कि अगर हम एक कैरिंग कैपेसिटी को, जैसे हम 50 लाख विजिटर्स आ रहे हैं, तो उसको हम अगर रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो वो ठीक है क्या? करा क्योंकि था ना गवर्नमेंट ने बीच में, जब Yes, केदारनाथ sir. ट्रेजेडी हुई तब तो Yes, बहुत sir. जल्दी नहीं है restriction कई जगह है. यस सर, केदारनाथ सर ट्रेजेडी उसमें फिर ये एक ये इशू आता है कि ये फंडामेंटल राइट को वॉलेट कर रहा है कि आप जी। रिस्ट्रिक्ट कर रहे Let हैं। me tell you, यस सर, I mean, तिरुपति जो मंदिर है यस सर, इसमें सबसे ज्यादा लोग जाते हैं. राइट सर, तिरुपति ऊपर जाने के लिए आपका टिकट लगता है राइट सर, और एक लिमिट से ज्यादा ऊपर जा नहीं सकते. नंबर यस 1. सर, नंबर 2, वहाँ पर क्या है, जाने का रास्ता अलग है, आने का अलग है. और जो टैक्सी का ड्राइवर है उसका टाइम नोट होता है, वो तेज नहीं चला सकता क्योंकि अगर वो तेज चला के वहाँ पहुंच गया तो 3 महीने की दीवार हो जाता है. तिरुपति मॉडल पढ़ लो वो आप। राइट सर, करेक्ट, जैसे भी केदारनाथ वहाँ पर ट्रेजेडी, limit है. केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए ये जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम आया था ना, Yes, sir. बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन, यस सर, उसमें उन्होंने बोल दिया कि इसके बाद अपनी अलाउ करेंगे ऋषिकेश में। कैरिंग कैपेसिटी हर एक की होती है. यस सर, तो यस ऋषिकेश में क्यों रोकना है? रिस्ट्रिक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब ज्यादा जरूरी जो है वो मैनेजमेंट है. मैनेजमेंट, यस सर, इसको मैनेज करना चाहिए. Yes, आप sir. मैनेज में आप क्या करते हो, रिस्ट्रिक्ट करते हो, क्या करते हो. एक बस में कितने लोग जा सकते हैं आखिर? राइट सर, मतलब अगर जब ज्यादा भरेंगे तो बस तो पलटेगी. आप अपना पर्सनल टच भी दे सकते हो। आप ऋषिकेश, जैसे मैं क्यों बोला कि आई एम आल्सो फ्रॉम ऋषिकेश, यस सर, तो अगर ऊपर के लिए हमने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का टिकट रखा है और Yes, वहाँ पे sir. पूरे लोग हो गए तो उसको हाँ. ऋषिकेश में क्यों रोकना है? हाँ, क्योंकि वहाँ पे करेक्ट, तो ऑलरेडी ये आपका एडवेंचर टूरिज्म की Tourism. बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, यस सर, क्योंकि पीछे रोक सकते हैं ना, यस जैसे सर, हरिद्वार एक का middle जो में. स्टॉप है Yes, रोकिए, इसमें कोई डेवलप करें अच्छे यस अच्छे सर, लोग यस वहाँ सर, रोकिए। यस सर, हाँ ऋषिकेश बस एक दिन कहीं और निकाल लो. राफ्टिंग Yes, कैंपिंग के लिए फिर सर ऐसा Yes, भी है sir. ना, जो ऋषिकेश तो एक तरीके से गेटवे है. जरूरी नहीं तो सारे बद्रीनाथ केदारनाथ ही जाएंगे. कई लोग औली जाते हैं, कई लोग Right, अदर sir. प्लेस. नहीं, वही श्रीनगर जैसे जाते राफ्टिंग हैं, कैंपिंग वाले भी बहुत आ रहे हैं, हाँ. तो एटलीस्ट जो ये वाले ऊपर वाले यात्रा का पूछ लीजिए कि Yes, आपका sir. हिल स्टेशन है, तो इस हिसाब से चेक रोकना पड़ेगा। क्योंकि आप वो होता है ना अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट 10 साल चला, इससे बड़े सस्टेनेबल डेवलपमेंट 100 साल चल जाए, यस सर। वो ज्यादा बेनिफिशियल है। सर ये एक अच्छा पॉइंट है, जैसे आपने कहा ना कि हम हरिद्वार से पहले क्यों नहीं तो डेवलप वो कर रहे चेक चीजों को। अरे कई Yes, सारी sir. चीजें पूछा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ तक हम्म. आपका हिल स्टेशन है, तो आप उसी हिसाब से चेक एंड बैलेंस जब कर। जगह ही नहीं है तो फिर ऊपर जाना ही क्यों? ये RFID वाला जो इन्होंने करा था कॉन्सेप्ट, जी, जी, हाँ, yes, sir. उसमें ये था कितने लोग गए वहाँ पे, वो रोक के फिर ऋषिकेश करते थे। एवरी ईयर ड्यूरिंग यात्रा सीजन में से दे स्टॉप पीपल एट ऋषिकेश, Right, sir. ऊपर मत जाओ, ऊपर पूरा फुल हो गया, कोई लॉज नहीं बचे, सारे लोग केदारनाथ चले गए, Yes, sir. एक्सट्रीम वेदर है, Yes, sir. सारे लॉज फुल है, तो आप जनता को बाहर चलाओगे, आम जनता मरेगी तो एसडीएम और एसपी के ऊपर चार्ज आएगा। Right, तो sir. तुमने रोका क्यों नहीं नीचे तक, तो ऊपर लॉज फुल है। कैरिंग कैपेसिटी तो यू हैव टू. रात को टेम्परेचर जी, जी. माइनस में हो गया, बर्फ पड़ जाती है केदारनाथ में आधे Yes, रात sir. को, तो कहीं तो रोकेंगे आप उन्हें, जी, तो वो सारा आपको बोलना पड़ेगा। और स्मार्ट सोल्यूशन। ये इकोलॉजी वर्सेस डेवलपमेंट एक जनरल क्वेश्चन है, बट Yes, sir. क्या रहना चाहिए. yes, sir. और अभी जैसे 28 तारीख तक मुझे नहीं पता, Yes, sir. ये फॉरेस्ट फायर का भी चक्कर होगा. Yes, sir. फॉरेस्ट उसके फायर ऊपर का भी थोड़ा सा Yes, sir. कंपनसेशन वाला आपका बहुत एक्सीलेंट पॉइंट था, बट Yes, कहाँ sir. कंपनसेट करेंगे ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए। Yes, जैसे sir. वहाँ के पेड़ कट रहे तो मैं कहीं और पेड़ लगा के Right, कंपनसेट sir. बोला कहाँ लगाओगे, Hmm.
तो कुछ ना कुछ आंसर होना चाहिए। यस सर, मेरा तो इस पे काउंटर क्वेश्चन है, मैंने पूछा है, यस सर, आप अच्छी सड़क बनाएंगे तो यस सर, दिल्ली वाले एक्स्ट्रा एक मकान यहाँ और ले लेंगे, आप ये करना चाहते हो क्या? यस सर, I know people who are buying one extra house everywhere. यस सर। All the rich people are having one extra house. ठीक है, सर मजे बट जैसे ये इकोलॉजी वर्सेस डेवलपमेंट वाला इशू है, इसमें हमें एक बैलेंस तो देना है ना। एक किसी को हम प्रॉपर ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट ही ठीक है या फिर इकोलॉजी का। but then you have to have a master plan. हाँ राइट You being an architect, Yes, you have sir. to have a master plan. मास्टर प्लान। यस आज सर, जो मसूरी की जो ये देहरादून में ऊपर की साइड में जो बिल्डिंगें बनी है, राइट सर, they should not have been there. यस सर, करेक्ट, Instead of the Yes, sir. secretariat being in this crowded area, यस सर, it could have been somewhere near the airport. वो कौन सी जगह है? राइट डोई वाला है, डोई वाला, यस वहाँ बना देते आप। यस सर, मतलब it is a weird place which I find राइट where there is a separate IAS colony, there is a Satellite separate city PCS colony, Yes, there is a separate police colony. तो सैटेलाइट सिटी डेवलप करते हैं, मेन सिटी राइट सर, जब हर राज्य की कैपिटल अलग बनी है, राइट सर, आज की डेट में नया रायपुर अलग है, आपका भुवनेश्वर की कैपिटल से दूर है, हर जगह कैपिटल दूर होती है, तो इन लोगों को बिल्कुल शहर के अंदर बनाने की जरूरत क्या है? तो देयर आर 101 ऑल्टरनेटिव्स। अभी रिसेंटली वो सर को भी बता रहा था, ऑल Yes, इंडिया रैंक 22 आई है अंशुल पाटिल। हाँ अंशुल भट्ट, यस सर, तो उसके इंटरव्यू का 12 मासा करके एक चैनल है, हाँ यस तो सर, देखिए बड़ा हेल्पफुल, उसमें Yes, sir. ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया था, यस सर, इकोलॉजी वर्सेस डेवलपमेंट। ठीक है, द वे ही स्टार्टेड Yes, उसका sir. आंसर था यस सर, कि सर दिस ecology versus development is not a binary concept. This zero sum game way of looking at ecology versus development, the concept itself is wrong. Sir, it is not the binary. It is sustainable ecological development or developmental ecology. इस टाइप से उसने आंसर दिया था, it was very, वो अभी इस टाइम में बोला था तो Yes, बहुत sir. अच्छा आंसर था। यस सर, The way he started, जैसे कि बाइनरी में नहीं देखा कि अगर हम इकोलॉजी की तरफ जा रहे हैं तो डेवलपमेंट हिट हो रहा है, या डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं तो ऐसे देखने से ही हमें राइट सर, इस टाइप का था कि आई एम मतलब देखने वाला which side of that you are. करेक्ट सर, मतलब it is not a binary concept. So besides that thing is all about, and being an architecture Yes, sir. person, probably you can put in one or two of your inputs in यस सर। सर एक मुझे इसमें पॉइंट ये भी लगता है कि कई बार जैसे लॉस को फॉलो भी नहीं किया जाता, कि वो Fully नहीं किया जाता। हाँ कि बैल्कनी एक्सटेंड कर दी उन्होंने, एक फ्लोर एफएआर को फॉलो नहीं किया, इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो क्या है, पुलिस रोकती नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं रोकती। वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का ऊपर उसमें यही है कि आपको अपनी डिटेल पता होनी चाहिए यस सर, कि कौन से एक्ट के अंदर क्या बायलॉज है यस सर, जो फॉलो नहीं हो रहा है। आपको पर लगता है एब्सोल्युटली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं हाँ यस सर। सर एक मेरे को डाउट और था ये कैपिटल वाला इशू का, कि ये मैंने कई जगह पर अभी मतलब जैसे स्टेटस ये है कि इंटरिम कैपिटल देहरादून है और गैंड साइड फुल कैपिटल हो गई है। यस सर, टेम्पररी कैपिटल है, अभी तो फुल कैपिटल का कॉन्सेप्ट आ ही नहीं था। टेम्पररी कैपिटल ही देहरादून, सेम डिमांड और दैट ओके, उन्होंने समर कैपिटल में डेवलप किया, वहाँ पे अभी पायलट प्रोजेक्ट चल रहे थे, हाँ जैसे यस सर, एक सेशन उन्होंने ले लिया था, उसमें तो खैर कई सारे कंट्रोवर्शियल है अभी- Yes, sir. सर अगर पूछे तो हम यही बताएंगे कि अभी टेम्पररी कैपिटल इज अभी आप देहरादून। कट ऑफ द सिस्टम, आपको जो पढ़ा है उसी के हिसाब से रखोगे। Yes, sir. वही लोग उतना लिमिटेड But- है सर। But you can always say यस सर, that, in my opinion, the capital should be where it is originally planned. राइट सर, It's a view, यस सर, and that you also give confidence to the people. कि भाई जैसे बोलते हैं ना, you lead by example, you Yes, sir. walk the talk. यस सर, Then you say you don't want to have migration. यस सर, First you go back. यस सर, If you go back, then people will also go back. राइट 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 सर, वैसे भी वो सेंटर में जिससे दोनों तरफ डेवलप जी, जी आधे को वो शिकायत की कि आपने ट्रैक्टर मार दिया, वहाँ रख दिए। उससे क्या होता है कि वो जो लॉप साइडेड डेवलपमेंट है वो भी पीछे। और नई नई चीज बनाने में मजा अलग है ना। यस सर, उन्होंने But sir, बनाया, उसमें फिर वो वही issue तो कहते हैं। इसीलिए बनाया ना। यस सर। बहुत जगह हो रहा है। सर एक पॉइंट और था, जैसे अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है, फॉर एग्जांपल सीएए का है, तो अगर मैं किसी पॉइंट से उनके इत्तेफाक नहीं रखता हूँ पॉलिसी से, तो कैन आई से दैट? या In what? जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो कहें कि आपने एक दो तीन रिलीजन ही चूज किए हैं, हाँ, ठीक है। तो क्या आप कह सकते हैं कि नहीं इन फ्यूचर वो दे कैन इंक्लूड अदर्स आल्सो? इट्स फाइन दैट दे हैड इंक्लूडेड दिस। नहीं, you can only say in a polite way. यस सर, ठीक है, you have been. I appreciate you मुझको frankly बात करें। यस You सर, can say that I would say that they need to expand यस the सर, scope of this policy after आप यस सर, seeing what is the implication. राइट सर, Need to expand the scope sir. is a very general word. हाँ यस सर, So generally, राइट सर, the policy itself is not wrong. यस सर, policy- पॉलिसी इज राइट। But right or it's not wrong. I'll put Yes, that. ठीक है, it's Yes, a policy. यस नहीं भी होती तो भी चलता था, पर Yes, कर sir. दी तो ठीक है। सर, अब वो पॉलिसी हो गई है, तो अब ये इश्यू है कि भाई बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं। तो पहले आप ये कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अग्निवीर, यस सर, अग्निवीर सही है गलत है ये Hmm. समय बताए।
राइट सर। मुझे सर- पहले दोबारा रीफॉर्मुलेट करके रिवाइज करके यस सर। सर जैसे इस तरह के हैं कि यस और नो वाले में, जैसे आप अपनी वीर को सपोर्ट कर रहे हो नहीं, तो वी कैन से यस, मतलब ब्लेटेंटली हम कह सकते नो नो, वही जो मेरा वो पार्टीशन वाला क्वेश्चन। नहीं नहीं मैं बताता हूँ, Yes, मैं sir. बताता हूँ। Yes, देखो ऐसा है, कुछ सवालों के जवाब अभी दिए नहीं जाते, हैं। राइट सर। हर सवाल का जवाब आज नहीं दे सकते। ये पॉलिसी अभी बनी है, राइट ये सर। पॉलिसी अभी इम्प्लीमेंट हो रही है, यस सर। इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये हमें बताएगा ना। राइट सर। It is a well thought of policy apparently, but since the proof of the pudding lies in the eating, यस सर। let it be I mean done with, then we come to know what happens. यस सर। Recent policies में तो ये बेस्ट आंसर है। राइट सर। राइट Recent policy सर। has just come after हाँ। इतना सारा हमें डिस्कशन। क्या पता, यस सर। So let it give some time हाँ, and then right, sir. और ये फैक्ट है, राइट fact सर। है। इफेक्ट। मतलब आप चाहते हैं कि एक यंग फाइटिंग फोर्स हो, हम्म, उसके लिए आपने फोर्स बनाया, राइट बट सर। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पर्सन हु इज ज्वाइनिंग, उसको लगता है मेरा 5 साल बाद क्या होगा। ठीक है, ये Yes, दो sir. अलग अलग पर्सपेक्टिव है। यस सर। अगर 5 साल बाद वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो वेरी गुड, यू हैव अ यंग फाइटिंग फोर्स, Right, वेरी sir. गुड। और बजट भी हमारा कम हो रहा है, जो डिफेंस उसके बारे में बात नहीं करनी नहीं, चाहिए। उसके बारे में कभी बात नहीं करनी, बिकॉज राइट। अकॉर्डिंग टू मी पर्सनली ऑल्सो, यस सर। टू जस्टिफाई एनीथिंग और नेशनल डिफेंस ऑन Yes, द sir. ग्राउंड ऑफ सेविंग मनी यस सर। is absurd. क्योंकि जब एक चीज जरूर कह सकते हैं, यस सर। for the people of Uttarakhand, it is definitely something they are looking forward to, हाँ. how it could carry on, because a large number of people from आपको Uttarakhand यस सर। come for, join the army. राइट सर। any more doubts? सर ये तो You are a wonderful candidate. It will only go good. थैंक यू सर। देख, अवॉइड नहीं करना चाहिए, मगर हर चीज में व्यू देना भी जरूरी नहीं है, यस सर। यस सर। क्योंकि अभी देखिए, वैसे भी ऑनेस्टली मैं तो जिंदगी भर ब्यूरोक्रेसी में रहा हूँ, यस सर। आपका व्यू से ज्यादा होता है इम्प्लीमेंटेशन, राइट सर। स्पेशली एट द लोअर लेवल। अगले 10 से 15 साल जब भी आप नौकरी करेंगे, यस सर। आप इम्प्लीमेंटर हो, यस सर। आप पॉलिसी पॉलिसी फॉर्मुलेटर नहीं नहीं। होंगे। यस सर। और जब आप 15 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका, यस सर। वो एक्सपीरियंस आपका पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, राइट सर। तो इसलिए व्यू से कोई मतलब नहीं। अगर गवर्नमेंट कहती है कि 30% टैक्स काटना है, तो आपको काटना है, काटना है। 25 क्यों नहीं है और 35 क्यों नहीं, वो आपको नहीं पूछना। यस सर। सर जैसे इंटरव्यूज में कहा जाता है कि आप जो गवर्नमेंट पॉलिसी ला रही है उसको क्रिटिसाइज मत करिए, इसीलिए मैं पूछ रहा था। मेरे ख्याल से पूछता तो नहीं। Outright criticism मत हाँ, करो, वैसे भी yes. ठीक कोई है। पूछता भी और नहीं। गवर्नमेंट Yes. पॉलिसी में सवाल भी नहीं पूछते। राइट आई सर। डोंट थिंक दे कैन आंसर, राइट यू आर नॉट सपोज्ड टू डू इट। सर। पर्सनैलिटी में क्वेश्चन हमने इसलिए पूछे क्योंकि वो भी पूछे, खुद ही आप प्रिपेयर कर लेना। यस सर। तो सर इस टाइप के जैसे क्वेश्चन होंगे, जैसे ड्यूटी वर्सेस पर्सनल एथिक्स, जैसे अगर किसी का सपोज एक्सीडेंट हो गया है और आपको एक ड्यूटी में जाना है, तो आई थिंक इसमें तो फिर प्रेफरेंस वो होनी चाहिए ना कि अगर जान तक बन आई है तो फिर उसको हैंडल। Yes, sir. ड्यूटी, यस यस सर। ड्यूटी। यस सर। अब यूपीएससी में तो तैयारी कर रहा हूँ, सर यस। एथिक्स में सारे यही क्वेश्चन तो यस सर। वो एक ही तरफ जाता है आराम से। Yes, sir. नहीं यस सर। तो बड़ा मतलब इसको बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, और क्योंकि आपको ड्यूटी में जाना है, आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया तो हाँ. क्या करना? आई थिंक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच और वैसे भी अप्रोच ये कहती है कि पहले तो एक्सीडेंट। लेकिन पता नहीं Yes, सर ये आइडियल टाइप के क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? मैंने पूछा था, मैंने बताऊं, प्रैक्टिकल में तो चीजें डिफरेंट। नहीं मैंने बताऊं मैंने क्या पूछा था। मैंने कहा अभी था, पूछा लास्ट नहीं, मैं लास्ट ईयर का बताता हूँ, मैंने पूछा था, मैंने कहा आप यूपीएससी एंटर करते हैं, गेट पे टक्कर हो गई, यस सर। आपका इंटरव्यू, आपको क्या करना? और बंदे ने जवाब भी सही दिया, उसने कहा सर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आई डायल 100, और दूसरे बात है जो मेरे को यूपीएससी में अंदर कॉन्टैक्ट नंबर है उसको मैं बोल दूंगा आई जस्ट हैविंग अ प्रॉब्लम देयर, एकदम आप बात करना, और जैसी पुलिस आएगी तो अंदर आके। यस सर। करेक्ट, यस सर। ही डन हिज जॉब एज अ सिटीजन, वो राइट। सिटीजन है उस टाइम पे वो अफसर नहीं है, कुछ नहीं है, वो सिटीजन है। अब सिचुएशन बेस्ड में तो सिचुएशन की बहुत सारी एंसिलरी थिंग्स भी तो होते हैं, कनेक्टिंग yes, थिंग्स भी होते हैं। क्या होगा, क्या हो सकता है, आप कोई ऐसा रिस्पांसिबल ऑफिसर हो जिसको आप डेडिकेट कर पाए, हाँ राइट आप सर। उसको डेडिकेट कर यस दीजिए। सर, बिल्कुल। उसमें यही यू स्टिक टू योर पॉइंट, ऐसे नहीं कि मैंने 2-3 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे, आपने कहा नहीं सर गलती हो गई, मैं आई विल चेंज द। नहीं स्टिक टू योर पॉइंट। यस सर। उसके यहाँ पे जस्टिफिकेशन होना चाहिए, ड्यू जस्टिफिकेशन। आप ऐसे कैंडिडेट बता रहे हो वो बहुत ज्यादा आपसे वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ऐसे पूछे जा रहे हैं, इसलिए यू बी रेडी फॉर दोस क्वेश्चन। यस सर। वैसे भी लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। यस सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। मेरे रूममेट के लड़के का नाम दिला सर एक रिक्वेस्ट हो रहा है आपसे कि